टुडे वी विल डू सिलेबल डिवीजन टाइप्स एंड रूल्स. सिलेबल हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि सिलेबल इज एवरी साउंड विच इज अटर्ड. सो वेन एवर वी से अ वर्ड, there are parts of sound which make a word. So that identification is known as syllable division. So when we do syllable division, the kids have to be taught the syllable division types and syllable division rules, जो almost 6 and 6 हैं. Somewhere they break up a rule and they say there are 7 syllable types, but they come under the magic E syllable type. So first thing which we should know about syllable is कि a syllable is a sound which is uttered, and definitely if you utter and sound, there has to be a vowel or a y. That means a semi vowel. सो वी टेंड टू मिस द सेमी वावल. हमें लगता है कि अगर उसमें वावल नहीं है तो फिर ये टुकड़े में कैसे बटेंगे. तो आप ध्यान दोगे तो शायद उस पार्ट ऑफ साउंड में ना वावल नहीं भी हो तो एक वाई शायद छुपा होगा विच इज एक्टिंग एज अ वावल. सो वी से इट इज अ सेमी वावल. इवन डब्ल्यू डज दिस एट टाइम्स. So let us see how to chop a word into syllable. As you can see on the cover, like paper has been chopped. So why do we say paper? Why don't we say paper? Or is it the sound which determines the syllable? Both things are interrelated, which we will do in this part of phonics. So first we will discuss about 6 syllable types. 6 syllable types I'll be explaining one by one. कुछ चीजें आप पहले से आप अवेयर हो, you will just know the syllable type of it. फर्स्ट थिंग इज क्लोज सिलेबल्स, एंड क्लोज के साथ ही आता है ओपन सिलेबल्स. इन दोनों को हम एक साथ समझने का प्रयास करते हैं. थर्ड इज वावल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, वेयर ई इज साइलेंट, और वी कैन से इट इज मैजिक ई. Next is vowel team syllables, because we read that when two vowels are walking, then first we'll do the talking. So there are vowel teams like that. It may be a vowel team, it may be a diphthong. But if they are together, so we have a vowel team syllable type. Next is, we said that bossy R. We learnt about the bossy R, ki if R is present after a vowel, it will control the vowel. And we tend to utter that sound together. जैसे अगर ए के साथ आर हो तो ए और आर एक साथ ही हम मान के चलेंगे आर, एंड द साउंड इज चेंजिंग. जनरली इट शुड बी एर, but R is changing the sound of A into A. So this kind of syllables are known as R controlled syllables. And one more syllable type is known as consonant plus LE syllable. We will be doing these syllables in detail in the next slides. But 6 syllable types, if you are asked, don't confuse between syllable types and syllable division rules. क्योंकि syllable division rules भी 6 ही आते हैं. syllable types हो गए कि आपकी syllable closed है या आपकी सिलेबल ओपन है. आपने जो ब्रेकअप किया है वो किस तरह की सिलेबल है. क्या आपके सिलेबल में मैजिक ई या साइलेंट ई या स्प्लिट डायग्राफ ई काम कर रहा है. क्या आपके सिलेबल में कोई वावल टीम का सिलेबल है. क्या आपके वर्ड में कोई आर कंट्रोल सिलेबल है, ए आर ई आर आई आर यू आर. एंड आपके वर्ड में सिलेबल्स जो है उसमें क्या कहीं पे कॉन्सोनेंट के बाद में एल ई आ रहा है. सो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड बाय द किड when they start doing syllable types. सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लोज्ड और ओपन वाला चैप्टर. This has to be understood in this way कि if a vowel is followed by a consonant, जैसे कि अगर आप इस सिलेबल को ध्यान से देखो, देर इज अ ब्रेक हियर, यानी कि यहां से ये सिलेबल टूट रहा है. दिस वर्ड हैज 2 syllables, दिस साइड एंड द अदर. इस सिलेबल में आप ध्यान से देखो कि जहां ब्रेक है, उस ब्रेक में जो वावल है, वावल के ठीक बाद में एक सी है. तो जब भी वावल के बाद में सी आ जाएगा यानी कॉन्सोनेंट आ जाएगा, तो वो वावल जो है ना वो अपनी शॉर्ट साउंड बोलेगा. नाउ इफ यू ऑल कैन रिकॉल द शॉर्ट साउंड्स ऑफ ऑल वावल्स, किसी को भी याद है ए का शॉर्ट साउंड क्या है? इफ एनीवन कैन रिकॉल ए, व्हाट डू वी से? इज ए. E says E. A. E. Yes. E. I will say E. E. O will say E. O. O. And you will say
अ अ आ अम्ब्रेला। आ आमल। अम्ब्रेला। नेक्स्ट। तो इन साउंड्स को दिखाने के लिए हमें ये सिंबल बच्चों को बताना होता है कि आप अगर शॉर्ट साउंड यूज कर रहे हो आधे चंद्रकार की तरह आप इसके ऊपर दोगे, यानी कि मैं इसकी साउंड्स पढ़ रही हूँ अ, ए, ई, ओ, अ। और अगर मैं उसके लेटर नेम्स पढ़ रही हूँ लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, आई विल जस्ट पुट अ डैश। दैट मीन्स आई एम ओनली रीडिंग आउट द लेटर नेम्स। सो इफ यू लुक एट दिस वर्ड रैबिट, रैबिट में ए का साउंड शॉर्ट आ रहा है या लॉन्ग आ रहा है? टेल मी व्हेन यू। शॉर्ट। इट्स शॉर्ट। शॉर्ट आर। यस, शॉर्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि इस सिलेबल में वावल के बाद एक कॉन्सोनेंट आ गया है, तो वावल डर जाता है और वो खुल के नहीं गाता है, वो अपना शॉर्ट साउंड बोलता है। सो दैट इज वाई टू टेल द किड्स कि दिस इज शॉर्ट साउंड, हम इसके ऊपर ऐसे करके एक सिंबल लगा देते हैं एंड वी विल से दिस ए एज ए। तो ये जो रैब हुआ या फिर ये बिट हुआ, ये दोनों ही सिलेबल किस तरह के सिलेबल टाइप कहलाएंगे? क्लोज्ड क्लोज्ड। syllable. क्लोज सिलेबल्स। Got it? So closed syllable will always have a breakup which has a vowel followed by a C. And whenever the vowel has a C just after it, breakup के पहले, तो ये vowel हमेशा short sound बोलेगा. This is the rule and which is known as the type which is known as closed syllable. इसका ठीक ऑपोजिट है नेक्स्ट पेज पे, ओपन सिलेबल। इफ द ब्रेक इज सच दैट द वावल इज नॉट फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, यहां पे ब्रेक हो गया ये वर्ड सिलेबल और यहां बॉट आ गया, तो इन दोनों को ध्यान से देखो, यहां पे ब्रेक है, यहां ब्रेक है। तो आपके ब्रेक के पहले जो वावल है, इज देयर एनी सी आफ्टर वावल? इट हैज ओनली वावल। तो इफ इट हैज ओनली वॉवल। वी, हाँ सिर्फ वी है, सी नहीं है उसके ब्रेक के पहले, यहां पे देखो ओ के बाद ब्रेक हुआ है और ओ सिर्फ वावल है, तो ये अब डरेगा नहीं, ये लॉन्ग साउंड बोलेगा, ये बोलेगा रो। क्या बोलेगा? इट विल नॉट से ओ, इट विल से ओ, जो उसका लेटर नेम है। बट हियर अगेन इफ यू सी, ओ के ठीक बाद में टी है, वी है, एंड देन अ सी। सो दिस डज नॉट हैव फ्रीडम, इसकी आजादी है लेकिन इसकी आजादी अब नहीं है, क्योंकि इसको कॉन्सोनेंट आकर क्लोज कर दे रहा है। तो इस एक सिलेबल में कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज्ड है? इफ आई आस्क यू ऑल, विच इज द क्लोज सिलेबल एंड ओपन सिलेबल इन दिस वर्ड? टू syllables are there, no? So just try to answer. मैम बोट जो है वो क्लोज सिलेबल है, और ओ आर ओ जो है वो ओपन। ओपन सिलेबल है। यस, क्योंकि उसकी साउंड जो है ओ की वो शॉर्ट आ रही है बॉट में और लॉन्ग आ रही है रो में। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन ओ एज ओपन एंड सी एज क्लोज्ड syllable. So now there is a very interesting exercise we do with kids. Take out your copy and write few words which are initially open syllable और फिर हम उसको क्लोज कर लेंगे। जैसे कि एच ई, ही, ये ब्रेक जो हो रहा है, इट इज अ सिंगल सिलेबल वर्ड, इसमें कुछ भी नहीं है आगे में। और एच ई हमने क्यों बोला? क्योंकि इसके वावल के बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ई ई ही बोलेगा। तो ये क्या हो गया, ओपन या क्लोज्ड? यस। दिस इज ओपन सिलेबल। बट नाउ ओपन add सिलेबल। a consonant after e and make a new word. हैन। Hen. हैन। हाँ, now this becomes an open syllable or closed syllable? क्लोज्ड। Closed syllable. So you have to think of words in which by यस, क्योंकि adding उसके one बाद कॉन्सोनेंट। consonant, the syllable changes. Now start thinking of such words. अगर मैं और एक देती हूँ, एच आई, हाई, हम बोलते हैं ना हाई, हेलो, क्योंकि आई इज अ वावल एंड इट डज हाँ। नॉट हैव एनी कॉन्सोनेंट आफ्टर इट, तो हमने हाई को हाई पढ़ा, आई को हमने लॉन्ग साउंड पढ़ा ऐसे। लेकिन अब अगर मैं एच आई के बाद एक कॉन्सोनेंट ऐड कर दूं, एनी कॉन्सोनेंट, एम एम यूज करेंगे तो वो ई यस, हो जाएगा, ही। यस, तो अब ये बन जाएगा शॉर्ट। सो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ 5 words
आप एक तरफ लिखोगे ओपन और एक तरफ क्लोज्ड, एंड ट्राई टू राइट the same word as open syllable and the same word as closed syllable. जैसे ही का हमने हिन बना दिया और हाई का हमने हिम बनाया या हिट बनाया, है ना? तो इस या HIP हिप बनाया. तो you can think of 5 set of words, and whenever we introduce this kind of syllable, ये दोनों को हम एक के बाद एक करते हैं, closed syllable, open syllable. And the best example is high and hit, है ना? देखो हमसे कौन मिलने आया है, HI, हाई. हाई. और देखो हाई एकदम वो बिंदास है, आई बिल्कुल खुल के बोल रहा है, आई. अचानक से इसको किसने हिट किया, किसने हिट किया? टी ने आके हिट किया. टी कॉन्सोनेंट है, उसने जैसे ही हिट किया ना वो डर गया. अब वो आई नहीं बोल रहा, बोल रहा है ई. सो वो ओपन सिलेबल अब क्या बन गया, क्लोज्ड सिलेबल. सो ये दोनों में डिफरेंस क्लियर है, क्लोज्ड एंड ओपन सिलेबल टाइप. यस. Okay, now let us go to the next syllable type. This is also a very common syllable type, and because now we are doing phonics for so many weeks, हम इससे हम अवगत हो गए. ये syllable type है कि अगर आपके पास एक वावल है और एक कॉन्सोनेंट है और फिर उसके बाद में ई आ जाए, तो हाउ डज द syllable type बी काउंटेड एज? इट इज वावल प्लस सी प्लस ई, शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे VCE टाइप. That means there is a vowel, there is a consonant, and there is a E. ई जब लास्ट में आता है हम उसे मैजिक ई. मैजिक ई या साइलेंट ई कहते हैं, क्योंकि ई कुछ भी नहीं कहता है. लेकिन ई के आने से क्या होता है, जो वावल है वो उसका डर कम हो जाता है, एंड दैट वावल स्टार्ट्स सेइंग इट्स लॉन्ग साउंड. सो दैट इज व्हाई वी डोंट से कैक, वी से इट इज अ केक. एक. हाँ, ई के आने से ए का डर खत्म हो जाता है. ई इज द गुड हेडमास्टर, जिसके आने से ये डरता नहीं है ए. एंड इट सेज इट्स लॉन्ग साउंड, बट खुद वो दिखाई नहीं देते. ही इज नॉट सीन, द ई इज नॉट सीन. सो दिस काइंड ऑफ अ सिलेबल टाइप इज नोन एज वावल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, जिस जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कप केक. ओके, सो दिस इज थर्ड सिलेबल टाइप. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, वावल टीम. इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वावल के अगर दो वावल्स एक साथ में होंगे तो हमें उनको एक साथ ही स्पेल करना है. लाइक इफ ई एंड ए आर टुगेदर, सो वी विल नॉट काउंट देम एज टू वावल्स, वी विल काउंट देम एज वन वावल. And second is that when two vowels are working, the first will do the talking and it will say its long sound. वो क्या बोलेगा? E. It will not say TA. It will say E. So this is another syllable type. और इसका नाम क्या है? Vowel team syllables. So when I send a worksheet, और जब बच्चे करेंगे तो आपको उसमें syllable type पहचान के लिखने की आवश्यकता होगी कि व्हाट इज द सिलेबल टाइप. आप तो क्या लिखोगे? वावल टीम सिलेबल है ये, क्योंकि इसमें मुझे वावल टीम दिख रहे हैं. तो यू नीड टू, चाहे वो वावल हो या डिप्थोंग हो, ओ आई, है ना, ओ ए, डबल ओ, ये सारे वावल टीम जब भी रहेंगे तो एक साथ ही उन्हें मतलब जोड़ के बताना है, अलग अलग उनको नहीं करना है. डोंट ब्रेक देम अप. नेक्स्ट कम्स आर कंट्रोल्ड सिलेबल, विच आई सेड दैट बॉसी आर. बॉसी आर क्या करता है, वो जब भी किसी वावल के साथ आता है तो उसकी साउंड थोड़ी सी चेंज हो जाती है. सो हियर विच कॉम्बिनेशंस ऑफ आर कंट्रोल्ड वावल कैन यू सी विथ टू काइंड ऑफ वावल्स? व्हाट आर दे? आर किस किस के यू एन साथ है ई. यहाँ पे? हाँ, यू आर एंड ई. ई आर. ई के साथ. यस. तो ये भी वावल एंड कॉन्सोनेंट है, लेकिन वावल कॉन्सोनेंट अलग अलग नहीं देखेंगे. यू एंड आर को मिलाकर जो साउंड होता है तो उसी साउंड को ही हम यूज और करेंगे, बर अर. अर. और गर. सो दोनों में ही साउंड है. गर. ये थोड़ा सा ज्यादा हम स्ट्रेस दे के बोलते हैं, इसको हम कम स्ट्रेस बोलते हैं, लाइक अ मिक्सर, है ना, साउंड लाइक अ मिक्सर. सो लेटर आर वेन एवर इज देयर, मिक्सर. हम इसको फिर एज अ ग्रुप मानेंगे, एज अ पेयर मानेंगे, ई आर, यू आर. वेन वी डू syllable breakup, we cannot break between you are.
वो रॉन्ग होगा. वी कैन नॉट ब्रेक बिटवीन ई आर, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये सिलेबल टाइप ही ये है आर कंट्रोल्ड सिलेबल. आर के साथ सिलेबल है तो वी हैव टू टेक बॉसी आर टुगेदर विद द 5 वावल्स, जो भी वावल्स उसके साथ मैच होते हैं. सो बर्गर. ओके. एंड लास्ट ईयर इट इज द ओके। कॉन्सोनेंट प्लस एली. जैसे कि सिलेबल्स में अगर आपके लास्ट में एल ई है, तो एल ई का साउंड एल ई ली नहीं आता है. द साउंड कम्स एज अल. इट कम्स एज अल. So this sound has to be identified by the kids. कि whenever there is LE, because when we do syllable division rules, we will teach them कि अगर किसी भी word के last में LE है तो उसे break करने के लिए आप count back 3 करेंगे. यानी कि ELB. आप 3 स्टेप पीछे गए एंड आपने इसको तोड़ दिया. जब भी आप इसका सिलेबल ब्रेकअप देखोगे, आप देखोगे कि एल ई अगर है तो एल ई के साथ एक कॉन्सोनेंट को लिया जाता है CLE, और उसके पहले ही इसका सिलेबल ब्रेकअप होगा. सी और एल ई के बीच में ब्रेकअप नहीं होगा. इट विल ऑलवेज आस्क अ कॉन्सोनेंट टू कम अलोंग, कि भैया मेरे साथ आ जाओ, मैं आपके साथ ही चलूंगा, एल ई अकेला नहीं चलेगा. और उसकी ब्रेकअप कहाँ होगी वर्ड की? BLE अगर लिखा है तो बल, बल के आगे, बिकॉज अल अगर बोलोगे तो उसका फिर कोई कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा, तो बल, कल, टल. इट विल ट्राई टू टेक वन मोर कॉन्सोनेंट विथ इट टू कंप्लीट द साउंड ऑफ अल. सो दीज आर द syllable types. एक बार if हाँ you want to revise, we can just go through the 6 names. Just read out one, Sandhya, whatever the 6 types. क्लोज सिलेबल, हम्म. क्लोज सिलेबल, ओपन सिलेबल, हम्म. वॉवेल, हम्म. कॉन्सोनेंट, हम्म. वॉवेल टीम सिलेबल, आर इसको कंट्रोल्ड, VCE बोलेंगे कॉन्सोनेंट प्लस हम, एली वावल सिलेबल्स। कॉन्सोनेंट ई, VCE. ओके. हम्म. जी। This is vowel team syllable. Then आर कॉन्सोनेंट प्लस एली सिलेबल। CLE, शॉर्ट फॉर्म में क्या याद रखेंगे? CLE syllable. सी एल ई। हाँ. सो व्हेन द किड्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द सिलेबल टाइप, उनको देखना होगा कि इज इट अ क्लोज सिलेबल, इज इट अ. तो एक ही वर्ड में आपके दो तरह के क्लोज्ड ओपन हो सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि एक वर्ड में सिर्फ क्लोज्ड ही होंगे, एक में ओपन ही होंगे. Different syllables can have different kind of closed or open, and closed and open determine that vowel will be pronounced as short sound or long sound. उसी के वजह से हमें पता चलता है कि वहां पे ए का या ओ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा, शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा, बाय द ब्रेकअप, कि वो कहाँ से ब्रेक हो रहा है. नाउ लेट अस सी what are the basics of a vowel consonant chop. Whenever we are asked to break a word into syllable, we have to identify which are the vowels and the consonant just after the vowel. First काम वही बोलता है, mark the vowels with V and the consonants with C. एंड उसके बाद आप उस वर्ड को ब्रेक करो, चॉप करो. इसलिए इसको VC चॉप के नाम से भी जाना जाता है, कि व्हेन यू वांट टू ब्रेक अ वर्ड इनटू स्मॉलर चंक्स, इनटू स्मॉलर सिलेबल, तो आप उसको VC चॉप सिखाओ. नाउ व्हाट आर द बेसिक थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर चॉपिंग अ वर्ड इनटू सिलेबल. द फर्स्ट रूल सेज एवरी सिलेबल मस्ट हैव अ वावल, और एज आई सेड वाई एज अ वावल. हो सकता है किसी सिलेबल में वावल ना दिखे, लेकिन वहां पे वाई एज अ वावल आपको दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट दिस वर्ड कैट, कैट को हम कितनी सिलेबल में मानते हैं? कैट को हम बोलते वक्त में मुंह कितनी बार खोलते हैं? एक ही बार, सिंगल सिलेबल। एक ही बार, इसीलिए बिकॉज यहाँ पे एक वावल है. देर इज वन वावल. नाउ नेक्स्ट इज लेमन. लेमन में कितने वावल्स हैं? दो। काउंट द वावल्स. वी, वी. वी Two, वी। yes, two vowels are there. So this word has to break up into two. And when we break up, we say it becomes lemon, lemon. Okay. Now, ले next comes, अन। huh. But now here you will say that there is one vowel, but there लेडी। is no more vowels there. तो लेडी क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ?
वाई इज Y एज as a वोवेल। vowel, Y as a semi vowel या Y वाई as a vowel. वोवेल। That is why we are breaking up lady also into वोवेल। two syllable, lady. और ले क्यों बोले, डी। ला क्यों नहीं बोली मैं, क्योंकि ब्रेक कहाँ पे है, वेर इज द ब्रेक? क्योंकि क्योंकि वो कॉन्सोनेंट वोवेल के बीच में। क्योंकि ए के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है। कॉन्सोनेंट वोवेल के बीच में, ए और डी के बीच में। डी को नहीं गिनना है, हमारा वहां ब्रेक हो मैम। चुका है, यानी कि ए आजाद है, अब ए के पीछे कोई कॉन्सोनेंट उस एरिया में नहीं है। हमने एक लाइन बना दिया है, लक्ष्मण रेखा, ए अच्छा, इज हाँ। फ्री नाउ, ए इज फ्री, तो ए लंबी आवाज निकालेगा, ले, इट विल नॉट से लैडी, इट विल से लेडी। ओ, लेडी। लेडी। नेक्स्ट इज, अब आप यहां बोलोगे कि यहाँ तो थ्री वावल्स है, ये भी वी है, ये भी वी है, और ये भी वी का काम करता है, तो फिर इसका दो सिलेबल क्यों होता है, एनी आइडिया? हम्म, ट्राई टू से द वर्ड केकी। क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें मैजिक ई है मैम। ई। Yes, magic E is always silent and it will only change the vowel. साइलेंट। हाँ, it will only change the vowel into long vowel. उसका अपना कोई रोल प्ले वर्ड में नहीं होता है। तो केक ई नहीं होता भले है। तीन वावल दिखता हो, लेकिन we will pronounce it with two syllables, केक ई। ओके, तो ये फर्स्ट रूल हो गया कि आपको बीसी के पेयर्स ढूंढने होंगे, वावल कॉन्सोनेंट, वावल ओ, कॉन्सोनेंट, वावल के बाद ठीक एक कॉन्सोनेंट कौन सी है, ये हो गया फर्स्ट, ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज, हमें सब मालूम है कि हम जब वर्ड्स बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई थिंक ऑफ द वर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर मेरे पास एक बड़ा सा वर्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इस वर्ड में तीन टुकड़े हैं इसके, जो मैंने आपको बोला था फिश बना के हम जॉलीफोनिक्स में समझाते हैं। द रूट वर्ड इज अंडरस्टैंड, ये इसका बेस हम्म, वर्ड है। ओके, इसमें एक शुरू में लग गया और प्रीफिक्स और मिस, हाँ, और सफिक्स लग गया इंग। हाँ, और स्टैंडिंग। यस, स्टैंडिंग। तो व्हेन यू स्टार्ट दिस वीसी, आप जब ये वीसी का टुकड़ा करना शुरू करोगे ना, तो पहले उसके बड़े टुकड़े कर लो, जैसे मछली के छोटे टुकड़े करने के पहले उसके पूंछ को अलग कर दिया जाता है, उसके सिर को अलग कर दिया जाता है, फिर बॉडी के टुकड़े होते हैं ना। तो ऑलवेज फर्स्ट सी कि मैंने को जो बड़ा वर्ड मिला है, उस वर्ड में क्या मुझे ग्रुप ऑफ लेटर्स एज प्रीफिक्स दिख रहे हैं, क्या मुझे कोई सफिक्स भी दिख रहा है। तो वी शुड ऑलवेज फर्स्ट ब्रेक द वर्ड आफ्टर द प्रीफिक्स एंड बिफोर द सफिक्स। तो ये ऑलरेडी टूट चुका है तीन टुकड़ों में, मिस अंडरस्टैंड एक में और इंग। अब अंडरस्टैंड को हम ब्रेक करेंगे वीसी के रूल से, जो हम करने वाले हैं। गॉट माई पॉइंट? बात समझ में आई संध्या यस। कि मैं क्या बोली? आप कोई भी एक और वर्ड यस आप आई मैम। देखो। मैम आपकी आवाज बीच बीच में चली जा रही है। चली जाती है, पता नहीं, आई आई एम ऑन अ वाईफाई, मे बी नेटवर्क कम हो। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ। हाँ, तो ये प्रीफिक्स, बेस वर्ड एंड सफिक्स, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चे को बताना होगा। प्रीफिक्स के कुछ सेट्स होते हैं इंग्लिश में, जो बच्चे को आप कर दोगे इंट्रोड्यूस, कि ये सब मछली के हेड के तरह लगे रहते हैं। अगर वो आपको दिख रहा है तो लेट मी नो। जैसे कि अनट्रू, इफ द वर्ड इज अनट्रू, तो अ चाइल्ड हु नोज दैट अन इज अ प्रीफिक्स, वो सबसे पहले यहां से ब्रेक कर लेगा, उसके बाद फिर जो ब्रेक हो वो बाद में देखेगा, बट ही विल ब्रेक अन एंड देन ही विल नो दैट डेफिनेटली दो सिलेबल तो इसके होंगे ही। और फिर आगे अलग बात है कि उसके और ब्रेकअप नहीं होंगे, बिकॉज आप जानते हो कि ई अगर आ जाता है साइलेंट में, तो बस ये लॉन्ग इसका कर देगा, इससे ज्यादा इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हियर हम्म। दे विल नो दैट इफ प्रीफिक्स इज देयर, उसको हटाओ, सफिक्स को हटाओ और बेस वर्ड को तोड़ो। ये नहीं कि पूरे को फिर से बैठ के वीसी वीसी हम लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, सीधे बेस वर्ड का वीसी आप करो, प्रीफिक्स और सफिक्स का वीसी मत करो। ओके, नेक्स्ट इज इफ टू लेटर्स आर टुगेदर लाइक ब्लेंड एंड डाइग्राफ, तो वहां भी हमें क्या देखना है कि वी शुड नॉट स्प्लिट बिटवीन डाइग्राफ और ट्राइग्राफ। जैसे कि एस टी आर अगर एक साथ है, तो यहां पे हमें ध्यान देना होगा कि ये तीनों अगर स्ट्र एक साथ ही आते हैं, ट्राइग्राफ है, तो हम इसके बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं करेंगे।
ओके, बट डाइग्राफ अगर है तो भी सेम थिंग है। अगर डाइग्राफ मीन्स ओके। टू लेटर्स टुगेदर है, लाइक एम एंड पी, अगर हमें मिल रहा है लैम्प, so M and P, we will know that they actually together. CH is together, SH will come together, WH will come together. जितने भी ब्रदर्स हैं H वाले, SH, CH, WH, GH, या Q और U टुगेदर है, या फिर C और K टुगेदर है, इन सब डायग्राफ और ट्राइग्राफ में हमें ध्यान देना है कि उनको हम सिलेबल जब तोड़ेंगे, तो अगर ये आते हैं किसी वर्ड में, तो इनको एक साथ ही रखना है। दे आर अ फैमिली, दे आर अ ग्राफ फैमिली। दिस इज द थर्ड थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन वी आर ब्रेकिंग अप अ वर्ड इनटू syllable. And fourth, which we have discussed in syllable type, कि if you see vowel teams together, o a o i e a e e a y, चाहे vowel team हो या डायग्राफ हो या डिप्थोंग हो, जिसमें y है वो डिप्थोंग है, तो इसमें भी आपको एज अ होल रखना है। यू विल नेवर ब्रेक बिटवीन ओ ए, यू विल नेवर ब्रेक बिटवीन ओ आई, नहीं तो इसकी साउंड ही खराब हो जाएगी। यू विल नेवर ब्रेक बिटवीन ई ए। So these are some of the things which we keep in mind when we do a vowel consonant finding and chopping, ढूंढना और चॉप करना। आगे हम लोग जब देखेंगे इसके कुछ रूल्स को, डिवीजन रूल्स को, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये चीज वर्क कर रहा है। ओके, इसमें एक कोडिंग फॉर सिलेबल डिवीजन है, इसको एक बार हम लोग देखते हुए तो हम लोग कॉमन सिलेबल डिवीजन जो 6 टाइप्स है उसमें हम लोग जाएंगे। यहां तक क्लियर है या कोई डाउट है? एनी डाउट इन दिस? क्लियर है। क्लियर है ना? तो चलो कोडिंग के रूल्स को एक बार पढ़ के देखो। फर्स्ट रूल क्या कहता है? अभी जो हमने पढ़ा उसी के ही आधार पे है, तो हमने क्या देखा? फाइंड द, रीड आउट, फाइंड द फर्स्ट वोवेल एंड मार्क विथ वी। फाइंड द फर्स्ट वोवेल, हम्म। मार्क विथ वी। हम्म। देन, फाइंड द नेक्स्ट कॉन्सोनेंट एंड मार्क विथ सी। हाँ मैंने बोला कि हम लोग, अंडर। एक बहुत कॉमन सॉन्ग है, हाँ। मार्क द वॉवल्स विथ वी, वी मार्क द कॉन्सोनेंट्स विथ सी, सी। वी सिंग आउट लाइक दिस, ताकि बच्चे को याद रहे कि पहले वॉवल्स ढूंढने हैं और फर्स्ट नहीं, जहां जहां वी है वहां साथ में सी को ढूंढ लेना है। द इजीएस्ट वे, विच इज ऑल्सो गिवन एज अ पार्ट ऑफ निहार शांति पाठशाला, जो हमारी बुक्स हैं उसमें भी। ओके, थर्ड इज रीड आउट। ओके। हम्म। Underline any digraphs and trigraphs you can see in the word. ओके, इफ यू सी एनी डायग्राफ लाइक CH, SH आपको दिख रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि मैं इसको CC नहीं पढ़ूंगा। आई विल रीड दिस एज 1C, आई विल रीड दिस एज 1C, इसको भी आई विल रीड एज 1C। उसी प्रकार से अगर CQU है तो हम CC नहीं लिखेंगे, वी विल राइट दिस एज 1C, इसको हम 2C कंसिडर नहीं करेंगे। और टाइग्राफ जैसे कि हमने बोला STR, SCR, ये एक साथ है, तो फिर हम जानेंगे कि SCR को एक साथ लेना है, that is called a digraph, what you can see in the word. Okay, next, fourth point. Okay. Hmm. Read the syllable, hold this in your memory. Now, why are we saying read the syllable and hold this in your memory, which has been continued? Because sometimes how the word is pronounced helps us in deciding the syllable breakup. हम शब्द को कैसे सुने हैं ना, वो चीज इंपॉर्टेंटली हमें डिसाइड करवाता है कि सिलेबल ब्रेकअप कहाँ हुआ है वर्ड का। अगर लॉन्ग वावल सुनाई दे रहा है तो सिलेबल ब्रेकअप कहाँ हुआ होगा, अगर शॉर्ट वावल सुनाई दे रहा है तो सिलेबल ब्रेकअप कहाँ। तो कभी कभी हमें उल्टी गंगा भी बहाने पड़ती है, कभी कभी हम रूल्स के हिसाब से सिलेबल ब्रेकअप करते हैं और कभी कभी साउंड के हिसाब से भी हम सिलेबल ब्रेकअप करते हैं, कि अगर मैं किसी वर्ड को इस तरह से बोलूं तो क्या ये सुनने में सही लग रहा है, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, या सुनने में अटपटा लग रहा है। तब उस वक्त में कभी कभी अपवाद के रूप में सिलेबल ब्रेकअप का रूल चेंज हो जाता है। क्लियर? सो दैट इज वाई रीड द सिलेबल, होल्ड दिस इन योर मेमोरी, दिस यू हैव टू रिमेंबर कि तुमने जो पढ़ा है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है अल्टीमेटली फुल में। एंड रिपीट फॉर ईच सिलेबल इन द वर्ड, यानी कि when you will start reading a word, if I am reading a word, then I will start reading each syllable from first to last, और जितनी बार हम पढ़ेंगे हम उसको आगे लेकर चलेंगे। मान लेते हैं एक बच्चे के पास है टेलीस्कोप,
तो वो टेलीस्कोप एक बार में तो नहीं पढ़ेगा, तो वो ब्रेक करके जब पढ़ेगा तो वो पहले रखेगा मन में टेल, ओके ये टेल है, उसके बाद में आ रहा है एस, ओके, फिर आ रहा है कोप, और फिर बच्चा टेलेस्कोप, टेलेस्कोप ये जोड़ के फिर वो फाइनली जो वर्ड टेलीस्कोप है वो बनाता है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिटेन इन योर मेमोरी एज अ चाइल्ड, कि ईच सिलेबल वर्किंग टुगेदर and save in your memory so that you come from 3 letter words to 16 letter words, जो कि अगेन लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम दावा करता है। तुमने देखा होगा ना कि हम बच्चों को 3 अक्षर से 16 अक्षर तक पढ़ा सकते हैं। यस। हाँ, सो दैट इज वाई अगर बच्चा इसको याद नहीं रखेगा, ये हम्म। भूल गया, फिर आगे बढ़ के ये भूल गया, तो फिर पूरे वर्ड जाते जाते वो पूरी ही चीज को भूल जाएगा। तो हर एक सिलेबल को सिलेबल दर सिलेबल याद रखते जाना है मेमोरी में, और कभी कभी क्रॉस चेक करना पड़ता है कि हमने इस वर्ड को जब भी सुना है क्या ये ऐसा ही सुनाई देता है या कुछ गड़बड़ हम पढ़ रहे हैं। दिस द चाइल्ड हैज टू बी केप्ट एज अ लास्ट टाइम वेरिफिकेशन, कि अंतिम में वो चेक कर सकता है कि ये सुनने में सही लग रहा है, ये सुनने में अटपटा लग रहा है। सम रूल्स नीड दैट काइंड ऑफ यू कैन से असेसमेंट, जो खुद आपको पर्सनली करना होगा फ्रॉम अ वोकेबुलरी जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। हाँ ओके, दिख रहा है मैम। सो द सिलेबल डिवीजन रूल्स स्टार्ट विद दिस रूल। तो फर्स्ट इज रैबिट रूल, कि अगर 6 लेटर्स हैं और 2 कॉन्सोनेंट है बीच में, तो आप वहां पे जो पेयर है आप VCCV आप ढूंढोगे, और वहां पे दोनों सी के बीच में आप इसको ब्रेकअप करोगे, डिवाइड बिटवीन द कॉन्सोनेंट्स। द नेक्स्ट रूल इज द टर्टल रूल। टर्टल रूल विल बी वेरी अच्छा कॉमन। इसीलिए मैम। हाँ, से संध्या कुछ बोली क्या? हाँ हाँ मैम, इसीलिए गार्लिक के बीच में हुआ क्योंकि आर और एल जो है वो कॉन्सोनेंट है। CC है। टर्टल रूल इज सिमिलर टू द सिलेबल ओ। टाइप। तुम्हें याद आ रहा है हमने LE वाला सिलेबल टाइप किया था, हम्म, तो उस सिलेबल टाइप हाँ को, हाँ। हाँ, हम क्या था? टर्टल रूल से याद रखते हैं कि जब भी हम सिलेबल डिवाइड करेंगे ना, हमें LE के पहले वाला C भी लेना होगा। दिस इज द टर्टल रूल, कि इफ यू हैव अ हम्म। वर्ड विच एंड्स इन LE, देन प्लीज काउंट 3 एंड स्प्लिट। कभी भी कॉन्सोनेंट के बिना स्प्लिट नहीं करोगे। सो अगर LE इस वर्ड में है तो स्प्लिट जरूर, ये 3 में पीछे जाओ और यहां होगा, ये 3 में पीछे जाओ यहां होगा, इस 3 में पीछे जाओ यहां होगा। दिस इज अ सिंपल CLE रूल, जिसको हम टर्टल वर्ड से याद रख सकते हैं, बिकॉज टर्टल ऑल्सो हैज द LE कॉम्बिनेशन। ओके, वी विल जस्ट डू द syllable division rules, not ओके। the like detailing of it. नेक्स्ट सिमिलरली वी विल हैव अ VCV कॉम्बिनेशन डिवीजन रूल, कि अगर VCV आएंगे तो आपको V के बाद ब्रेक करना है, इसको हम याद रखते हैं टाइगर रूल के द्वारा। ओके, VCV जब होंगे। नेक्स्ट इज द हम्म। कैमल रूल। कभी कभी VCV में ही हम V के बाद नहीं तोड़कर हम C के बाद तोड़ते हैं, तो वहां पे अप्लाई होता है आपका कैमल रूल, विच आई सेड कि हमें सुनना होगा कि हम जब वर्ड ये उच्चारण करते हैं तो हम केमल बोलते हैं या कैमल बोलते हैं। उस उच्चारण से भी हम गेस कर सकते हैं कि हमारा सिलेबल कहाँ ब्रेकअप होगा। दोनों VCV हैं, ये भी और वो भी, लेकिन दोनों में एक में हमने V के बाद काटा, एक में हमने C के बाद चॉप किया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें किस वर्ड में इस रूल को फॉलो करना था और किस वर्ड में हमें टाइगर रूल को फॉलो करना था। एंड सिमिलरली टू मोर वी विल डू। लायन रूल इज सिंपल, इफ यू हैव 2 वावल्स टुगेदर, तो वहां पे दोनों वावल के बीच में हम VV के बीच में हम काट सकते हैं। इस पे हम लोग ये रूल को हम लोग लागू करते हैं, लायन रूल। हम्म। And there is one more panther rule. Panther rule says that if you have 3 consonants like this, a big family of VC, V और 3 consonants है, तो पहले VC के बाद ही आप ब्रेक कर दो। तो बच्चों को शुरू में ना ये रूल्स बताए जाते हैं, और फिर बाद में उनको प्रैक्टिस हो जाती है तो उनको किसी रूल की जरूरत नहीं होती है, पर शुरुआत में हम बच्चे को ये रूल्स बताते हैं। सो दीज रूल्स वी विल रिवाइज इन द नेक्स्ट क्लास एंड डू इन डिटेल। और इसके साथ साथ हमने जो शुरू में पढ़ा कि अगर प्रीफिक्स होंगे तो कहाँ ब्रेक करोगे, कंपाउंड वर्ड्स कहाँ ब्रेक करोगे, ये सारी चीजें एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू ब्रेक अप सम वर्ड्स एज पर द सिलेबल रूल विच वी हैव अंडरस्टूड। क्लियर? तो आपका होमवर्क होगा सिर्फ सिलेबल टाइप को यस मैम। रिवाइज कर लेना,
एक बार अगर आप सिलेबल ब्रेकअप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ना आपको बड़े वर्ड्स को पढ़वाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। किड्स विल स्टार्ट ब्रेकिंग वर्ड्स इजीली विदाउट योर हेल्प। वो वीसी पहचानेंगे, चॉप करेंगे, वीसी पहचानेंगे, चॉप करेंगे, एंड देन वी कैन इवन चॉप बिग वर्ड्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स इनटू अ सिलेबल एंड रीड दैट वर्ड वेरी प्रॉपरली। ओके, तो वी स्टॉप